This is Rajesh Kumar Dwivedi, Principal Government Higher Secondary School, Danpur, District Banswara. Today I am going to teach 12th class students English compulsory book Rainbow. There is a poem, The 7 Ages of Man, written by William Shakespeare. So today I would like to teach you this particular poem. As I have written The 7 Ages of Man, William Shakespeare, 1564-1616. It's my opinion that if you want to understand a poem thoroughly, very clearly, it is important to read about the poet himself, the life of poet himself. So, first of all, I would like to give you a short, specific description, knowledge about William Shakespeare. As you know, William Shakespeare was born in 1564 and he died 1616. A very well-known, famous poet of English literature, a playwright of English literature, and a very great dramatist. His works include 38 plays, 154 sonnets, and 2 narrative poems. This particular poem is taken from his very famous drama As You Like It. हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि विलियम शेक्सपियर उस प्रसिद्ध नाटक और नाटककार कवि का नाम है जिसने अपने जीवन काल में अंग्रेजी साहित्य को बहुत ही उम्दा किस्म की साहित्य दिया है, जिसमें 38 नाटक, 154 कविताएं और 2 लंबी कविताएं हैं. His famous and well-known works include Othello, Hamlet, King Lear, As You Like It, Merchant of Venice, Julius Caesar, A Midsummer Night's Dream, etc. तो मैं केवल इतना बताना चाह रहा था कि ये जो आपके कोर्स में पोएम है, कविता है, द 7 एजेस ऑफ मैन, ये व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पोएम, इस कविता का स्रोत क्या है, वो शेक्सपियर के प्रसिद्ध कॉमेडी नाटक एज यू लाइक इट से ली गई है. एंड दीज लाइन्स और पोएम इज स्पोकन बाय ए कैरेक्टर मेलंकली जैक्स इन द ड्रामा. उस एज यू लाइक इट ड्रामा में एक पात्र है जैक्स, वो इन लाइनों को बोल रहा है. और लिटरेरी टर्म में अगर कहें तो दिस इज ए मोनोलॉग. What does the monologue means? A monologue is when a character gives a long speech on the stage in the theater. So this is the previous knowledge of this poem. यह हल्की सी भूमिका है. अब मैंने ये कुछ कविता की कुछ स्टेंजास लिख रखे हैं. फर्स्ट और सेकेंड स्टेंजा में उसी पर फोकस कर रहा हूँ. द वेरी फर्स्ट लाइन, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. This is the first stanza. Now I would like to explain this. All the world is a stage. Shakespeare has compared this world to a stage. And this is a very famous quote from Shakespeare. So many writers, filmmakers have used this line. All the world is a stage. ये दुनिया जो है एक रंगमंच है. हिंदी में अगर कहें, ये दुनिया एक रंगमंच है. जैसे एक स्टेज होती है जिस पर नाटक प्ले किया जाता है थिएटर में, ठीक इसी प्रकार से ये दुनिया भी एक रंगमंच है जिस पर क्या करना है, all the men and women merely players. All the men and women, सारे मनुष्य, पुरुष, स्त्रियां, merely means only, players का मतलब क्या है, कैरेक्टर्स, एक्टर्स.
हम सभी लोग, सारे पुरुष और स्त्री केवल क्या है, उस नाटक में भाग लेने वाले पात्र हैं. जस्ट एज एक्टर्स कम ऑन द स्टेज and after their performances exit from the stage, in the same way all men and women of the earth come means born and play their responsibilities fixed to them, and after their performances or responsibilities they exit means died. हर इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है, पुरुष हो स्त्री हो, वो उसका क्या है, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस. दे हैव देयर एग्जिट्स. एग्जिट का मतलब क्या होता है, प्रस्थान करना, निकलना, एंड एंट्रेंसेस, प्रवेश. तो एंट्रेंसेस और एग्जिट को शेक्सपियर ने इस टर्म में यूज किया है कि एग्जिट का मतलब है अवर डेथ और एंट्रेंसेस का मतलब क्या है, अवर बर्थ. कि वी हैव टू come on this world and perform our responsibilities and we have to leave this world. तो जैसे ये नाटक में जो कलाकार होते हैं वो मंच को छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही सारी दुनिया के लोगों को एक दिन इस दुनिया के मंच को छोड़कर जाना है. ये भाव है इसका. नेक्स्ट लाइन, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स. एंड वन मैन, और एक आदमी, इन हिज टाइम का मतलब इन हिज लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति प्लेज मेनी पार्ट्स, कई भूमिकाएं निभाता है. बहुत सारी भूमिकाएं हैं. जैसे दिस इज कॉल्ड अवर पर्सनैलिटी. इससे थोड़ा सा डिफर, पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी है. पर्सनैलिटी, द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स मास्क. हम सब लोग मास्क लगाए हैं. जैसे नाउ आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ ए टीचर. अभी मैं टीचर का रोल निभा रहा हूं, थोड़ी देर बाद कुछ और रोल निभाऊंगा. तो ठीक इसी प्रकार से वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं. His acts being 7, और वो उसकी भूमिकाएं कितनी हैं, 7. It means Shakespeare here wants to say that a man's life can be divided into 7 parts, 7 stages. एक मनुष्य के जीवन को 7 भागों में बांटा जा सकता है. और अब वो क्या क्या है. फर्स्ट, एट फर्स्ट द इन्फेंट. सबसे पहली जो अवस्था उसकी किसकी है, इन्फेंट. इन्फेंट मीन्स ए स्मॉल बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, चाइल्ड, नवजात शिशु, पहली अवस्था, जिसमें वो क्या कर रहा है, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स. म्यूलिंग का मतलब क्राइंग, वीपिंग. द न्यूबॉर्न बेबी वीप्स ऑल द टाइम. एंड प्यूकिंग मीन्स वॉमिटिंग, उल्टियां करता रहता है. कहाँ, इन द नर्सेज आर्म्स. अपनी नर्स की, धाय की, जो उसकी केयर कर रही है. शी में भी मदर, मां भी हो सकती है. तो एक नवजात शिशु जो दिन भर चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, उल्टियां करता रहता है अपनी परिचारिका की, अपनी मां की बाहों में. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए मैन्स लाइफ, ह्यूमन्स लाइफ. देन द विनिंग स्कूल बॉय. नाउ दिस इज द सेकंड स्टेज. फर्स्ट स्टेज शेक्सपियर ने बता दी, न्यू बॉर्न बेबी की. अब सेकंड, द winning school boy. Winning means grumbling, complaining. School boy, स्कूल जाने वाला लड़का. Now this is, ऐसा कह सकते हैं कि दूसरी अवस्था एक विद्यालय जाने वाले बच्चे की अवस्था है, जो हमेशा बड़बड़ाता रहता है, शिकायत करता रहता है. और क्या कर रहा है, विधि, उसकी कुछ विशेषताएं हैं. विधि सैशे. What does the word sachet means? Sachet means small bag, छोटा सा बस्ता for keeping books. And shining morning face. छोटे से बस्ते के साथ, बैग के साथ, और shining morning face. His face is shining just like morning. यहाँ शेक्सपियर कहना क्या चाह रहे हैं, शाइनिंग मॉर्निंग फेस. उसका एक तो सुबह तैयार करके माँ ने भेजा चमचमाता हुआ, चमकता हुआ चेहरा,
और वो यहाँ ये भी कहना चाह रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज जस्ट लाइक मॉर्निंग, जैसे पूरे दिन में प्रातः काल का जो महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से बाल्यकाल या स्कूल गोइंग की जो अवस्था है वो हमारे जीवन का प्रातः काल है, मॉर्निंग ऑफ आवर लाइफ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ आवर लाइफ, स्कूल लाइफ. क्रीपिंग लाइक स्नेल. अब ये उसकी तीसरी विशेषता है स्कूल गोइंग बच्चे की, क्या? क्रीपिंग मीन्स वॉकिंग स्लोली एंड स्लोली, बहुत धीमे धीमे चलता है. लाइक स्नेल की तरह. स्नेल इज ए स्मॉल ऑर्गन, घोंगा जिसको बोलते हैं, बहुत धीमे धीमे चलता है. तो एक घोंगे की तरह धीमे धीमे चलता है. अनविलिंगली टू स्कूल. ही डजंट वांट टू गो टू स्कूल, ही इज रिलक्टेंट टू स्कूल. वो स्कूल जाना नहीं चाहता, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ के ले जाया जाता है, माँ पकड़ के ले जा रही है और स्कूल वो जाना नहीं चाहता है और धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है घोंगे की तरह. तो दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ मेंस लाइफ. तो आई हैव डिस्क्राइब्ड हियर only 2 stanzas. Now I would like to sum up this poem because there is a lack of time and space here. What does Shakespeare pointed out in this particular poem, Seven Ages of Man? We have to remember that there are 7 ages of man's life. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If you want to learn the summary of this poem, you may learn like this. The first one is infant, and the second is schoolboy. Third is lover. Fourth is soldier. Fifth is justice. Sixth is pantaloon. And ये 6 हो गया. 7th is old age. This is the gist of the poem. Shakespeare has divided life into 7 stages. पहली अवस्था शिशु की, बच्चे की है, फिर स्कूल बॉय जाने वाले की है, फिर वो एक प्रेमी की, लवर की भूमिका निभाता है, फिर वो सोल्जर बन जाता है, नौकरी करने लग जाता है, फिर वो जस्टिस बन जाता है, बड़ा बुद्धिमान बनता है और अच्छे काम करता है. फिर एक पेंटालून मीन्स वेरी कॉमिक फिगर, है ना, एक जिसको हिंदी में कहते हैं विदूषक, जोकर, जिसको देख के हंसी आ जाए, क्योंकि एन अकाउंट ऑफ हिज अपीयरेंस, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, स्लीपर्स, इसलिए. और सबसे लास्ट स्टेज है ओल्ड एज. और इस कविता में शेक्सपियर ने जो 7वीं अवस्था ओल्ड एज, उसी को कहा है सेकेंड चाइल्डिशनेस, क्योंकि ये बहुत वृद्ध अवस्था है जिसमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति फिर बच्चा बन गया है, क्योंकि वो सारी चीजें वही हो जाती हैं उसकी जो कि बच्चे की होती हैं, विदाउट टेस्ट, विदाउट टीथ एंड विदाउट एवरीथिंग. So, at last, I would like to tell you that what is the political analysis of this poem. When we read about a poem, so we should read about it with reference to context and explanation. And at last, we should also try to mention what are the peculiar characteristics of this particular poem. What are the literary beauty of this poem? क्रिटिकल एनालिसिस भी कह सकते हैं इसको. तो मैं यहाँ एक बात मेंशन करना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर पोएम में जो मैंने भी 2 स्टेंजा आपको पढ़ाए, उसमें खास बात क्या थी. द फर्स्ट वन इज इट इज ए पोएम ऑफ मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग. सेकेंड इज द यूज ऑफ मेटाफर्स. द फर्स्ट वेरी sentence of the poem, all the world is a stage. This is the use, in this particular line, the use of metaphor is very desirable.
दूसरी लाइन में भी था मेटाफर का यूज। तो रूपक अलंकार जिसको कहते हैं, व्हेन ए थिंग कंपेयर्ड विद अदर, दुनिया की तुलना उससे की गई है, बच्चे की तुलना किसी से की गई है ना, तो रूपक अलंकार का